الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 5 ہے، حصہ گرامر ہے۔ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے گزشتہ 2 اسباق کا خلاصہ۔ جو 2 سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گرامر کے حوالے سے، آج اس کا خلاصہ پیش کرنے جاؤں گی تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے پچھلے اسباق میں کیا پڑھا ہے۔ پیچھے والا اگر سمجھ آ جاتا ہے تبھی آگے والا سمجھ آئے گا، اگر پیچھے والا سمجھ نہیں آیا تو پھر آگے والا بھی سمجھ نہیں آنے والا۔ یہ کوئی جگاڑی کام نہیں ہے کہ آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں گے، اس کو تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ ذوق شوق رکھتی ہیں کہ قرآن کو دیکھ کر قرآن کا معنی سمجھیں تو یہ کورس آپ کے لیے لازم ہے، آپ پر فرض ہے اس کا کرنا یا اس طرح کے کسی کورس کا کرنا۔ ہم نے ماضی میں پڑھا تھا ضربہ، یاد ہے آپ لوگوں کو کیا پڑھا تھا؟ ضربہ معنی کیا تھا؟ اس نے مارا۔ مضارع میں آ کے کیا کیا تھا؟ یا لگایا تھا شروع میں، کیا ہو گیا تھا؟ یضربو، یضربو۔ پھر اسم فاعل سے اس کو کیا بنایا تھا؟ اسم فاعل اس کا بنایا تھا ضاربن، ضاربن۔ اس کا معنی ہے اس نے مارا، اس کا معنی ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ ضاربن کا معنی ہے مارنے والا ایک مرد۔ اسے مفعول میں آ کر یہی بن جاتا ہے مضروبن، مضروبن یعنی مارا ہوا ایک شخص، مارا ہوا ایک شخص۔ اس کو مجہول بھی کر سکتے تھے، مجہول میں ضُرِبَ کریں گے تو پھر اس نے کیا ہو جانا ہے؟ مجہول ہو جانا ہے۔ اب اس کو مجہول یعنی پیسو وائس میں، یہ ایکٹیو ہے، پیسو وائس میں لائیں گے تو پھر کیسے ہو جائے گا؟ یہاں پر پیش ضُرِبَ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ مارا ہوا وہ ایک مرد۔ یضربو مارا گیا یا مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ اس کو یوں کہیں گے یضربو، کیسے کریں گے؟ شروع والے میں ضمہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پیش لے آتے ہیں، کیا بن جائے گا؟ یضربو، یضربو، یہ بھی یضربو ہے، یضربو۔ اسی طرح اسم فاعل میں یہی ایک ہی لفظ ہے، فاعل ایک ہی ہے اور مفعول بھی ایک ہی ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ یسمعو ہم نے پڑھا تھا ماضی میں سامعہ، سامعہ کیا معنی تھا؟ سماعت سے سنا اسے ایک مرد نے، اور مضارع میں آ کے کیا بن جاتا ہے؟ یسمعو، کیا معنی بنتا ہے؟ یسمعو سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد۔ اسی طرح اسم فاعل میں آ کے بنتا ہے سامعون، سامعون، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع کیا تھی؟ سامعین، اس کی جمع کیا تھی؟ سامعین، اسم فاعل کی جمع سامعین، سامعون، سامعون۔ اور اسے مفعول میں آ کے بنے گا مسموعون، مسموعون یعنی اسے مفعول کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اور سامع سے یہ مذکر کے ہیں، مؤنث کے لیے کیا لگائیں گے؟ سامعہ، سامعہ، یہ آخر میں گولتا ہے، مطلب سننے والی ایک عورت، ٹھیک ہے نا، یہاں مطلب سنایا گیا ایک مرد، کسی کو کچھ سنایا گیا ہو تو پھر ایسے ہی۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں بھی ہم نے پڑھی تھی۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا ناصارہ، ماضی میں پڑھا تھا ناصارہ، کیا معنی تھا؟ مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کی اس ایک مرد نے۔ اور پھر مضارع میں آ کے کیا بن جاتا ہے؟ ینصرو، ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ پھر اسم فاعل میں آ کے کیا بن جائے گا؟ ناصرون، کیا معنی ہو جائے گا؟ مدد کرنے والا وہ ایک شخص۔ اور مفعول میں آ کے بن جاتا ہے منصور، منصورن یعنی وہ شخص جس کی مدد کی گئی، کہتے ہیں نا منصور من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد کیا جانے والا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناصر کی جمع آتی ہے ناصرون، ناصرون، ناصرون بھی اسم فاعل ہے اور ناصرین بھی، ناصرین بھی اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث کیا ہے؟ ناصرہ، ناصرہ، ایسے ہو تو یہ مؤنث ہے، یعنی سننے مدد کرنے والی ایک عورت، مدد کرنے والا ایک مرد، مدد کرنے والے سب مرد، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور بھی صیغے ہیں لیکن آپ کے کورس کے لیے، آپ کے لیے اتنا کافی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ منصور مذکر ہے اور مؤنث میں اگر آئے گا تو پھر بن جائے گا منصورہ، یعنی وہ عورت ایک جس کی مدد
की गई हो, और इसकी जमा आती है मंसूरात, मंसूरात है। और मफूल की जमा करेंगे तो मंसूरूना, मुज़क्कर जमा मंसूरूना। उम्मीद करती हूँ गुज़श्ता सबक आपको समझ आ गया होगा और इसकी मिसालें भी समझ आ गई होंगी। आज हम चलेंगे अगले सबक की तरफ। पिछले सबक में माज़ी का पढ़ा था, माज़ी का ढांचा कैसा होता है, मुज़ारे का कैसा होता है, माज़ी पास्ट में तर्जुमा कैसे करेंगे, फ्यूचर और प्रेजेंट का तर्जुमा कैसे करेंगे, सब्जेक्ट में कैसे लेकर आएंगे और ऑब्जेक्ट में कैसे लेकर आएंगे। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सबक की तरफ, जो कि आज का सबक है। मसादिर के मखसूस अशकाल, अल्फाज, वर्ब की ख़ास शक्लें जिनसे हम फ़ेल को पहचान जाएंगे कि ये फ़ेल है या फिर ये फ़ेल इनकी शक्लें बताने का मकसद ये है कि इनकी शक्लें तब्दील नहीं होती, शक्ल यही इसकी रहेगी। अब एक शक्ल है इफ्तियाल, इसकी मिसाल आपके जहन में है कोई? चलें मैं दे देती हूँ। जैसे इक्तिसाब है, इक्तिसाब, आप गौर करें बिल्कुल इसी के वजन पर है। इक्तिसाबुन, इक्तिसाबुन किससे निकला है? कसब से, कमाने वाला, उर्दू का ही लफ्ज़ है। कहते हैं ना कसब हलाल फ़र्ज़ है, हलाल कमाई फ़र्ज़ है, ठीक है। इफ्तियालुन, इक्तिसाबुन, वर्ड भी, हरूफ भी बराबर हैं और एराब भी एक तरीके से है। उसके शुरू में भी हमज़ा है और इसके शुरू में भी हमज़ा है। ये बाब इफ्तियाल है, इसकी पहचान अलिफ और ता का आना है, ठीक है, अलिफ और ता का। इसी तरह इक्तिसाबुन, इक्तिसाब का माना कसब से निकला है, कमाने वाला। और मिसाल आपके जहन में है एहतिसाबुन, कहते ना मेरा एहतिसाब लेने आई हो, एहतिसाबुन, ये भी बाब इफ्तियाल से। एहतिसाब का माना क्या होता है? हिसाब किताब लेना, हिसाब मुहासबा वगैरह करना। एक लफ्ज़ है एतकाफ़ुन, एतकाफ़, एतकाफ़ का माना क्या होता है? एतिकाफ़ यानी एतकाफ़ में बैठना। ये बाब भी बता रही हूँ, इससे मिलते जुलते अल्फाज बता रही हूँ। फिर इनकी माजी, इन पास्ट कैसे बनाएंगे ये भी बताऊंगी, फ्यूचर और प्रेजेंट कैसे बनाएंगे, और ये सब इंशाल्लाह हम बताएंगे। अभी आपके जहन में अगर इससे मिलती जुलती मिसालें आ रही हो तो कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके बताएं भी सही कि आपको लेक्चर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके लिए मुफीद है या फिर नहीं है। अच्छा, और एक है इंतकाल, इंतकाल वैसे बाब, हाँ जी, इंतकालुन, इंतकाल का माना क्या होता है? आपको पता है ना, उर्दू में बोलते हैं भाई फलां बंदे का इंतकाल हो गया। क्या माना? यानी इस दुनिया से किसी और दुनिया में वो मुंतकिल हो गया, चला गया, ठीक है। और एक लफ्ज़ है इर्तिका, इसी तरह एक लफ्ज़ है इज्तिमा, इज्तिमा, देखें इज्तिमाउन, इज्तिमाउन है कि नहीं है बाब इफ्तियाल से, इज्तिमाउन, ठीक है। इसी तरह एक लफ्ज़ है इंतखाब, इंतखाब का माना क्या होता है? चॉइस, इंतखाब, किसी को मुंतखब कर लेना, इंतखाबुन, ये भी बाब इफ्तियाल है, इसी मज़दर से है, इसके मज़दर से है, बाब इफ्तियाल के मज़दर से। अच्छा जी, एक लफ्ज़ है इंतशार, एक लफ्ज़ है इंतशार, कहते हैं ना मुल्क में इंतशार बपा है। ये अरबी में भी अल्फाज यही इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में भी हैं। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुए और उर्दू में भी वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और एक लफ्ज़ है इंतज़ाम, कहते हैं ना इंतज़ाम बेहतर करो, मुनज़्ज़म, यानी किसी चीज़ का सेटअप वगैरह ठीक ठाक कर देना। इसी तरह एक लफ्ज़ है इज्तिनाब, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कैमरे में या नहीं, इज्तिनाबुन, इज्तिनाब का माना होता है परहेज़ करना, ये भी इसी बाब से, इज्तिनाबुन, इंतज़ामुन। चलें अब चलते हैं इनके माने की तरफ और माजी की तरफ, ठीक है। अब इक्तिसाबुन से माजी बनाएंगे एक तासाबा, एक तासाबा, एक तसाबा का माना क्या है? कमाया उस एक शख्स ने, ठीक है, कमाया उस शख्स ने या कमाया उसने। और एहतसाब से माना क्या होता है? एहतासाबा, माजी क्या बनाएंगे? यानी इनकी शक्ल तब्दील नहीं हो गई, ठीक है, ये याद रखिएगा। एहतासाबा
یہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. کیا مانا؟ حساب لیا اس ایک شخص نے. اعتکاف سے کیا بنے گا؟ اے تکافا. اے تکافا. اے تکافا کا مانا کیا ہے؟ اس نے اعتکاف کیا. اس نے اعتکاف کیا. انتقال، انتقالا کیا مانا ہو جائے گا؟ انتقالا، وہ شخص منتقل ہوا. انتقالا، ٹھیک ہے، اس کا انتقال ہوا، یوں ہی کر لیں، اس کا انتقال ہوا. اور اسی طرح ایک لفظ ہے اجتماع. اجتماع کیا بنے گا؟ اجتماع فعل ماضی ہے. اجتماع کیا مانا؟ اس نے اجتماع کیا، اس نے جمع کیا. انتخابہ، انتخابن سے ماضی کیا آئے گا؟ انتخابہ. انتخابہ، اس نے انتخاب کیا. انتشارہ، اس نے منتشر کیا، انتشار کیا. انتشارہ. دیکھیں ہم اردو میں لفظ انتشار بولتے ہیں، عربی میں ماضی میں لے آنے کے لیے اس کو اس طریقے سے رکھتے ہیں، انتشارہ. ٹھیک ہے. انتظام ہے انتظامہ. انتظامہ کیسے بن جائے گا؟ انتظامہ، اس نے انتظام کیا. اجتناب ان سے آئے گا اجتنابہ. اجتنابہ، میرے الفاظ غور سے سنیں. اجتنابہ، اس نے پرہیز کیا. اجتناب کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا. اس نے پرہیز کیا. اس نے انتظام کیا. یہ لگا لیجیے گا، میں انتظام لکھ دیتی ہوں. انتظام کیا، لے لیجیے اس نے بھی. انتشارہ، اس نے انتشار کیا، پھیلا دیا. اجتماع جمع کیا. انتخابہ انتخاب کیا. ٹھیک ہے. اب یہ ماضی والوں کو رہنے دیتے ہیں. آگے سے ہم پریزنٹ اور فیوچر کے جو افعال ہوں گے، کن شکلوں میں یہ والے الفاظ کن شکلوں میں آئیں گے، اس چیز کی طرف چلتے ہیں. معنی امید کرتی ہوں آپ سمجھ گئی ہوں گی، کیونکہ یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ ہم اردو میں بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. آئیے، یہ ماضی کی مثالیں تھی. اب یہاں سے ہم حال اور استقبال کی مثالیں شروع کرتے ہیں. اکتسبہ سے ہم مضارع کیا بنائیں گے؟ اجتماع سے مثال اجتماع، ناس لوگ جمع ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اکتساب سے مضارع ہم بنائیں گے یکتسب. جو یا لگایا تھا نا، ضربہ میں بھی تو یا ہی لگایا تھا نا. یکتسب، وہ کماتا ہے یا وہ کمائے گا. اس کا معنی تھا اس نے کمایا. اس نے کمایا، یہاں معنی ہوگا وہ کماتا ہے یا وہ کمائے گا. احتسابہ معنی اس نے حساب لیا. یحتسب، وہ حساب لیتا ہے یا لے گا. یحتسب، اب یہ پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے. یحتسب، وہ حساب لیتا ہے یا وہ لے گا. اعتکاف سے یا تاکیف، شروع میں یا کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. یہ آپ دیکھیں، جب ہم حال یعنی پریزنٹ اور فیوچر میں آتے ہیں تو پھر شروع میں یا کا اضافہ ہوتا ہے. آگے کچھ اور بھی آئیں گے تا اور الف، وہ میں بعد میں بتاؤں گی. یا تاکیف، یا تاکیف، وہ اعتکاف اس نے کیا، وہ اعتکاف کرتا ہے یا وہ کرے گا. ینتقل، انتقال سے کیا بنے گا؟ ینتقل. ینتقل، اس کا وہ انتقال کرتا ہے یا کرے گا. اجتماع سے بنے گا یجتمع، وہ جمع کرتا ہے یا وہ جمع کرے گا. ٹھیک ہے. انتخابہ سے آئے گا ینتخب، وہ انتخاب کرتا ہے. ینتخب، وہ انتخاب کرتا ہے یا وہ انتخاب کرے گا. انتشارہ سے بنے گا ینتشر، شروع میں یا کا اضافہ کریں گے. ینتشر، ینتشر،
वो इंतशार करता है या वो करेगा। इंतजाम से बनेगा यंताजिमु, यंताजिमु। क्या माना हो जाएगा? वो इंतजाम करता है, यंताजिमु, वो इंतजाम करता है। इज्तनब से बनेगा यजतानिबु, यजतानिबु, वो परहेज करता है या वो परहेज करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, पसंद भी आ रही होंगी। देखें, अब आप जान गई है ना कि हमने इक्तसाब, एहतसाब, इंतकाल, ये एक ही मस्दर है, ठीक है, जो कि इफ्तियाल के वज़न पर है। इन सब इफ्तियाल के बाब के नाम पर हमने इतनी सारी मिसालें ली है। ये उसकी मिसालें हैं, यूँ ही समझ लें, ठीक है। बाब इफ्तियाल की मिसालें हैं और इन मिसालों के साथ हमने माजी के सीगे भी बनाए हैं, हमने माजी के अल्फाज, फिर हमने यहाँ पर आकर मुज़ारे के अल्फाज भी बनाए हैं, ठीक है। इस्म फ़ाइल बना लेते हैं अब हम। इस्म फ़ाइल इसी स्ट्रक्चर पर, इसी मज़दर पर हम बनाते हैं इस्म फ़ाइल। इस्म फ़ाइल क्या बनेगा? यहाँ पर इस्म फ़ाइल कुछ और तरीके से बनेगा। ये जो या है ना, या ये वाला, इसको ख़त्म करके मीम कर देंगे, इस्म फ़ाइल बन जाना है, ठीक है। इस या को मिटाकर जब हम मीम बनाएंगे ना, तो ये इस्म फ़ाइल बन जाएगा। मुक्तसिबुन, या को क्या बना दिया हमने? मीम। आगे सारा का सारा वही आएगा, मुक्तसिबुन। मुक्तसिबुन क्या बन जाएगा? इस्म फ़ाइल। इसका माना हो जाएगा वो कमाता है, वो कमाता है नहीं, वो कमाने वाला एक मर्द, कमाने वाला एक मर्द। इसी तरह यहतसिबु है, इसके भी इस या पर हम क्या लगा देंगे? मीम लगा देंगे, ये इस्म फ़ाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा? मुहतसिबुन, मुहतसिबुन। देखें, या की जगह पे क्या लगाया हमने? मीम। मुहतसिबुन, हिसाब लेने वाला वो एक मर्द। या तकिफु है, इसकी भी या की जगह पे मीम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मोताकिफुन, मोताकिफुन। क्या माना होगा? मोताकिफुन, एतकाफ लेने वाला, एतकाफ में बैठने वाला वो एक मर्द। यंताकिलु है, इसकी या को ख़त्म करके क्या बना देंगे? मुनताकिलुन, मुनताकिलुन, मुंतकिल होने वाला एक मर्द। यजतामिउ से है, इसके भी या की जगह पे मीम लगा देंगे, ये इस्म फ़ाइल बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ये वर्ब से कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। मुजतामिउन, क्या बन जाएगा? मुजतामिउन, मुजतामिउन। क्या माना होगा? जमा करने वाला वो एक मर्द। यंताकिबु है, या को ख़त्म करके क्या लगा देंगे? मीम। क्या लगा देंगे? मीम, मीम, ठीक है। मुनताकिबुन, यहाँ पर ता भी है। मुनताखिबुन, क्या माना होगा? इंतखाब करने वाला वो एक मर्द। यहाँ माना होता है इंतखाब करता है या करेगा वो एक मर्द। यहाँ हो जाता है इंतखाब करने वाला वो एक। यंताशिरु से बनेगा मुनताशिरुन, मुनताशिरुन। मुंतशिर का माना होता है मुंतशिर करने वाला, मुंतशिर करने वाला, फैलाने वाला, इंतशार पैदा करने वाला। यंतज़िम उससे माना बन जाता है मुंतज़िम। आप लोग कहते हो ना, कोई इवेंट वगैरह कहीं पे जाते हो, यार वहाँ मुंतज़िम कौन था? मुंतज़िमुन, ठीक है, मुंतज़िमुन। अब ये या को सिर्फ बदल के मीम लग गया तो ये इस्म फ़ाइल बन गया, ठीक है। इसी तरह यजतनिबु है, तो क्या बन जाएगा? या को मीम में बदलेंगे तो ये इस्म फ़ाइल बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। मुजतनिबुन, मुजतनिबुन का क्या माना होता है? मुजतनिबुन का माना होता है परहेज करने वाला। मुजतनिबुन क्या माना होता है? परहेज करने वाला। इसी तरह और भी बहुत सारे अफ़ाल हैं, मेरे ख्याल में ये इतनी मिसालें आपके लिए काफ़ी हैं। अब ये इस्म फ़ाइल मुज़क्कर है ना, इसकी जमा क्या आएगा? जमा मुक्तसिबुन से हम बनाएंगे मुक्तसिबूना। क्या बनाएंगे? मुक्तसिबूना, मुक्तसिबूना। या बनाएंगे मुक्तसिबीना, मुक्तसिबीना, मुक्तसिबीना।
यानी जमा करने वाले वो सब मर्द। और अगर मुक्तसब से मोनस लेकर आए तो मोनस हम बनाएंगे मुक्तसेबा। क्या बनाएंगे? बस सारा वही होगा, आखिर में सिर्फ गोल हा लगा देंगे। मुक्तसेबा, बा है नहीं असल में गोल है, असल में है मुक्तसेबातुन। वक्फ की सूरत में हम पढ़ते हैं मुक्तसेबा। मुहतसिब है तो जमा क्या आएगा? मुहतसिबून। जमा क्या आना है? मुहतसिबून। मुहतसिबून जमा है, ठीक है, मुहतसिबून जमा है, और मुहतसिबीन भी जमा है। मुहतसिबीन यानी जमा करने वाले वो सब मर्द या फिर वो सब औरतें। मुहतसिबून, मुहतसिबीन जमा है, और मुअन्नस क्या आना है? मुहतसिबा। मुहतसिबा हिसाब लेने वाली। अक्सर औरतें हिसाब लेने वाली होती है ना अपने शौहरों से। मुहतसिबा हिसाब लेने वाली वो एक मर्द। वह आपके लिए इतना काफ़ी है समझने के लिए, मेरे ख्याल में समझ भी रही होंगी आप। इसी तरह आगे मोताकिफ है। मोताकिफून जमा क्या है? मोताकिफून। मोताकिफून एतकाफ में बैठने वाले बहुत सारे मर्द जमा है, ठीक है, मोताकिफून। और इसी तरह मोताकिफीन भी ला सकते हैं। अब आप ये कहें कि हम कहाँ पे मोताकिफून इस्तेमाल करें? मोताकिफीना। और कहाँ पे मोताकिफून, ये आपकी बात नहीं है, बस आपने समझना है। मोताकिफून है, मोताकिफीन है, तो ये समझ जाए कि ये इसम फ़ाइल का ही सीगा है, ठीक है। और आपसे एक गुजारिश ये भी करूँगी, अगर आप दिल लगी से पढ़ने वाली हैं तो साथ कलम भी रख लिया करें। कलम रखें, कॉपी रखें, और उसको राइट करते जाएँ, लिखते जाएँ, ताकि आपको आसानी हो। फिर कभी आप पढ़ाने का आपका दिल चाहे, पढ़ाना चाहें, तो फिर आप पढ़ा भी सकें आसानी के साथ, सहूलत हो जाएगी। इसी तरह मुंतकिलुन है तो जमा क्या क्या आना है? मुंतकिलुन। मुंतकिलून जमा मुंतकिल होने वाले, इंतकाल कर जाने वाले बहुत सारे। या बनेगा मुंतकिलीन। मुंतकिलीन इंतकाल करने वाले बहुत सारे, ठीक है। इसी तरह इनके आगे वाओ नून, वही लफ्ज़ है, लफ्ज़ मुंतकिल है, उसके आगे वाओ नून बढ़ा देंगे, मुंतकिलून या मुंतकिलिन या फिर या नून। यानी इन तमाम वर्ड के आगे अगर आप वाओ और नून का इजाफा करेंगे तब ये जमा बन जाने हैं, या फिर या और नून का इजाफा करेंगे तब भी इन्होंने जमा बन जाना है। मुंतकिलून, आप मुंतकिल को मुंतकिलून भी पढ़ सकती हैं, मुंतकिलीन भी पढ़ सकती हैं। बस इस्म फ़ाइल वाहिद से जमा इसने बन जाना है। हाँ, मोनस कैसे बनाएंगे? मोनस के लिए अभी बताया है, आपको आखिर में गोल ता लगा देंगे इन सब के। मुंतकिलन से आगे आप मुंतकिला, 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 असल में मुंतकिलतुन, मुंतकिला। बस बात खत्म। उम्मीद करती हूँ ये बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलेंगे इस्म मफ़ूल की तरफ। अब हम इस्म फ़ाइल से बनाएंगे इस्म मफ़ूल। यही मस्दर है, इसी मस्दर पर, इसी फ़ेल पर हमने इतनी सारी मिसालें दी हैं, और हर मिसाल के साथ हमने माजी भी बनाया है, पास्ट के सिगे भी, पास्ट के वर्ड भी बनाए हैं, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी, और इस्म फ़ाइल को भी बना लिया है। अब हम बनाएंगे इस्म मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो। अब मुक्तसबुन कमाने वाला है, ठीक है ना। अब इसको इस्म मफ़ूल कैसे बनाएंगे? बस बिल्कुल यही है, सिर्फ एक ज़ेर का फ़र्क आएगा। क्या आ जाएगा? मुक्तसिबुन से क्या बन जाएगा? मुक्तसिबुन से क्या बन जाएगा? मुक्तसाबुन। सीन के ऊपर ज़बर लगा दो बस। आखिर से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़ेर है तो इस्म फ़ाइल है, और आखिर से जो पहले वाला हर्फ है उस पे ज़बर है तो ये इस्म मफ़ूल है। मुहतसिबुन इस्म फ़ाइल है, मुहतसाबुन इसको कैसे बनाएंगे? मुहतसाबुन ये क्या बन जाएगा? इस्म मफ़ूल। देखिए सिर्फ एक ज़बर और ज़ेर से माना, यहाँ पर अगर कातिल है तो वहाँ मक़तूल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हिसाब लेने वाला है, यहाँ पर हिसाब दिया जाने वाला, यानी जिसका हिसाब लिया गया।
मोतकफ एतकाफ करने वाला खुद है और मोतकफ जिसको करवाया जाए। ठीक है, ये ज़ेर से ज़ेर को अगर ज़बर कर दोगे ना, ये सारा इसम फ़ाइल से इसम मफ़ूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मोनस बनाओगे तो आखिर में गोल ता लगा दोगे। जैसे मुक्तसाबुन है ना, मुक्तसबा, यहाँ पे ज़बर लगा के मुक्तसबतुन यानी मुक्तसबा, कमाने वाली, कमाई गई, मुहतसबा, हिसाब ली गई वो एक औरत है। इसी तरह मुनतकिलुन है, मुनतकिलुन इस्म फ़ाइल है, मुनतकिलुन मुनतकालुन मतलब जिसका इंतकाल करवाया गया हो, किया गया हो। मुजतमाउन मीम के ऊपर ज़बर लगाओगे तो इसे मफूल बन जाना है। मुंतखिबुन में खा के ऊपर ज़बर लगा दोगे तो इसे मफूल बन जाना है। ठीक है, आखिर से पीछे वाला जो हर्फ है उसके अराब का कितना बड़ा दखल है यहाँ पर। ठीक है, मुंतज़िम है। अच्छा, एक है मुंतज़िर। अच्छा, एक लफ्ज़ है, फ़ायदे वाली बात है, सुनती जाइएगा। मुंतज़िर, मुंतज़िर का माना क्या होता है? मुन कहते हैं हम आपके मुंतज़िर ही तो थे। ये लफ्ज़ भी उर्दू का अरबी में भी इस्तेमाल होता है। मुंतज़िरुन का माना होता है इंतज़ार करने वाला, इंतज़ार करने वाला। ठीक है, इस ज़ुआ जो है इसके नीचे ज़ेर है, अगर ज़बर लगा दोगे तो माना उलट हो जाएगा कि वो शख्स जिसका इंतज़ार किया गया। क्या हो जाएगा? मुंतज़रुन, मुंतज़र। मुंतज़र का माना होता है जिसका इंतज़ार किया जाए। अल्लामा इकबाल का शेर है, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। तो वो लफ्ज़ मुंतज़र है, मुंतज़िर नहीं है, और अक्सर लोग इसको गलती से भी पढ़ लेते हैं। कभी ये हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास, मुंतज़िर नहीं है, हकीकत मुंतज़र कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। मैंने इस कोर्स में पहले भी कहा था, अगर आप टीचर भी हैं, उर्दू टीचर हैं या इस्लामियात के टीचर हैं, आपने मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ, तब भी ये कोर्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत कीमती है, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये कोर्स पसंद है, आपके मयार के मुताबिक है, तो आप इसको शेयर भी करें। एक मारूफ लफ्ज़ है, मज़दर है इम्तिहान, ये भी बाब इफ्तियाल से है। इफ्तियालुन इम्तिहानुन, इसमें माजी क्या बनेंगे? इम्तहाना, इम्तहाना क्या माना होगा? उसने इम्तिहान लिया, इम्तहाना। ठीक है, और मुज़ारे में क्या बनेगा? यम्ताहिनु, या लगा देंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा? मुज़ारे यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यम्ताहिनुन, यम्ताहिनु इम्तिहान लेता है या फिर वो इम्तिहान लेगा। और इसी से अगर हम बनाएं इस्म फ़ाइल, तो इस्म फ़ाइल क्या बनेगा? इम्तिहान से इस्म फ़ाइल बनेगा मुम्तहिनुन। इस्म फ़ाइल क्या बनेगा? मुम्तहिनुन, क्योंकि इसमें एक मीम तो अपना है ना, और या की जगह पर भी तो हम मीम लगाएंगे ना, तो क्या बन जाएगा? मुम्तहिनुन। मुम्तहिन कहते हैं ना, मुम्तहिन साहब से गुजारिश है, उर्दू में लिखा हुआ होता है ये लफ्ज़ कई जगह पर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा और आपने इसको ज़ौक़ शौक़ के साथ सुना होगा। आप इसको करें, काम करें। आप इसी तरह ये बाब लिखें, इनके तर्जमे लिखें, इनसे मिलते-जुलते और अल्फ़ाज़ सर्च करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपके ज़ौक़ शौक़ को देखकर हो सकता है मैं मज़ीद कुछ और आपके पढ़ाने के लिए सोचूँ, कुछ और तरीके से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के आपको सबक दूँ। ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए आपका कोर्स इंशाल्लाह। आप अगर ज़ौक़ के साथ पढ़ेंगी, शौक़ के साथ पढ़ेंगी, तो इंशाल्लाह हम भी ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ाएँगे। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम।